Hello students, good morning to all of you. This lecture is for plus 2 medical and non-medical class and ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ, ਬੈਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜੇਬਲ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚਾਹੇ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡ ਆ ਗਏ, RED, ਇੱਕ OX। RED ਮੀਨਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, RED means reduction, OX means oxidation, reduction and oxidation। now oxidation ਤੇ reduction ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? oxidation ਹੁੰਦਾ ਹੈ loss of electrons। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਟੋਟਲੀ ਇਹਦਾ ਉਲਟ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮultaneously ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ।
इदां दी रिएक्शन कैमिकल रिएक्शन जिहदे विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलदियां ने। मीनस एक सबसटांस इलैक्ट्रॉन लॉस करता तो दूसरा उन्होंने गेन करता कैप्चर करता, तो उन्होंने आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यदि आप एक कॉमन जी एग्जाम्पल करते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है जिमें तो अपने को हैगा जिंक सॉलिड फॉर्म के विच है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म के विच है। एक्वस मीनस ਇਹਦਾ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सोल्यूशन बनाया होया, ਕੱਲੇ कॉपर आयन्स का नहीं हैगा, कॉपर का कोई सॉल्ट लेता उन्होंने आप वाटर के विच डिजोल्व किया, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस हो, तो इतने बन गया अपने को कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ना हुण तुसीं इत्थे देखो जिहड़ा जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव विच कन्वर्ट हो गया, मीनस इन्हें 2 इलैक्ट्रॉन की करते लॉस करते, लॉस ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर बन गया, मीनस इत्थे की हो गया गेन ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मीनस एक की रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ इत्थे जिंक जिहड़ा हैगा वो इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मीनस इहदी की हो रही है ऑक्सीडेशन। कॉपर इलैक्ट्रॉन गेन कर गया, मीनस इहदी की होगी रिडक्शन। तो इत्थे दोनों चीज़ां हो रही ने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की हो रही है जिंक की, रिडक्शन की हो रही है कॉपर की। ठीक है जी, तो जिहदी ऑक्सीडेशन होवे वो की हुंदा है रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान नाल इत्थे समझ लेना इहनूं, वो की हुंदा है रिड्यूसिंग एजेंट। जिहदी ऑक्सीडेशन हो रही है वो की है रिड्यूसिंग एजेंट, जिहदी रिडक्शन हो रही है वो की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक दूसरे के उल्ट ने। रिडक्शन हो रही है जिहदी मीनस ये करके आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं किसी दूसरे सबसटांस की, ता करके की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीनस आप इनू यूज़ करांगे कॉपर नू किसी दूसरे सबसटांस नू ऑक्सीडाइज करवाने वास्ते, तां की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इत्थे इहदी ऑक्सीडेशन हो रही है, मीनस आप किसी दूसरे सबसटांस नू रिड्यूस कराने लई इनू यूज़ कर सकते हैं, मीनस ये की रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, यदि आपकी हो रही है ऑक्सीडेशन, ये की कर सकता है रिडक्शन कर सकता है, इट मीनस ये की है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो एक दूसरे के उल्टा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, तो यह हो गया बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। नाउ नैक्सट जो भी आप बैटरीज बारे पढ़ते हैं, सैल्स बारे पढ़ते हैं, तो एक चीज़ होर इन्हां नाल जिहड़ी कि रिलेटेड है वो हैगी कंडक्टर्स। तो आपां नूं कंडक्टर्स बारे भी पढ़ना पैना। ठीक है, जिहड़े सबसटांसिस ने मेनली 3 तरह के होंदे ने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सैमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होंदे ने जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट कर सकते हैं, जिन्हां दी कंडक्टिंग पावर हाई है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो जिहड़े कंडक्टर्स होंदे ने वो इलैक्ट्रिसिटी नूं की कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक, जिहड़े इंसुलेटर्स ने वो कंडक्ट नहीं कर सकते। सैमी कंडक्टर्स होंदे ने जिहड़े जिन्हां दी कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होंदी है। ठीक है जी, तो यह हो गया कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सैमी कंडक्टर्स। बट आपां ने पढ़ना सिर्फ कंडक्टर्स बारे। कंडक्टर्स की होंदे ने जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, दे आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अपने कोल 2 तरह के होंदे ने, किहड़े-किहड़े ने? एक तो मैटैलिक कंडक्टर्स, जिन्हों आप बोलते हैं इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरे हैगे ने इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक, मैटैलिक कंडक्टर्स या इलैक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। नाउ मैटैलिक कंडक्टर्स किहड़े होंदे ने? देखो मैटैलिक वर्ड आ रहा मीनस मैटल्स तो लिया गया, मैटल्स। कुछ इदां दे सबसटांस ने जिहड़े सॉलिड स्टेट ते ही इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट कर सकते हैं, जिवें कि कॉपर हो गया। कॉपर CU कॉपर दीयां तारां बनदियां ने, वायर्स बनदियां ने, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म के विच ही सॉलिड फॉर्म के विच ही इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, जदों ये इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट करते हैं तो इन्हां दे विच कोई भी कैमिकल चेंज नहीं होता, नो कैमिकल चेंज,
जस्ट इलैक्ट्रॉन का फ्लो होंदा है, नो कैमिकल चेंज, कोई भी कैमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ते कनैक्ट करते हैं, कोई कैमिकल चेंज नहीं होता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जस्ट इलैक्ट्रॉन फ्लो ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਸੋਲਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ NaCl ਹੈ। NaCl ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਆਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਇਨਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਇਨਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਇਨਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਮਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਨਸ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ, ਬੇਸ, ਸਾਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸੋਲਵ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਦੇ ਆਰ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੌਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆਰ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स दो तरह के होंगे ने। पहला हैगा स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। वीक इलैक्ट्रोलाइट्स, वीक इलैक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स किहड़े होंदे ने, जिहड़े कंप्लीटली जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ AB ਸਲਿਊਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 100 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ 100 ਦੇ 100 ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। सो आप बोलांगे ए भी जो इलैक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशीएट हो गया। सो ये की है स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। तो इदा के इलैक्ट्रोलाइट्स जोड़े कंप्लीटली डिसोशीएट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, दे आर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स। ये एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड जिमें HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। जो अपने को आ गया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जिमें NaOH हो गया, KOH, तो ये एग्जाम्पल्स आ गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जोड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट्स ने ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, ये पार्शली आयोनाइज होंगे हैं। ये एग्जाम्पल आप समझ लें, जिमें 100 AB है, हो सकता है ये 80 मॉलीक्यूल डिसोशीएट हो जान, ये 100 के 80 AB तो डिसोशीएट हो गए, 20 इदा ही रह गए। आप बोलेंगे ये कंप्लीटली आयोनाइज कंप्लीटली डिसोशीएट नहीं होया। सो एक ही है वीक इलैक्ट्रोलाइट। तो इदा के इलैक्ट्रोलाइट्स जोड़े पार्शली आयोनाइज होंगे ने, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, कंप्लीटली डिसोशीएट नहीं होंगे, दे आर वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। ये एग्जाम्पल आप करेंगे वीक एसिड तो वीक बेस की। एग्जाम्पल की आ गया वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड किहड़ा हो गया, जिमें एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, ठीक है। वीक बेस हो गया जिमें अमोनीयम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो दे आर वीक इलैक्ट्रोलाइट्स। हुण जिहड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट्स ने कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए, तो आप किवें पता लगावांगे कि किन्ने क आयोनाइज होए ने, ये किन्ने क आयोनाइज नहीं हुए, किस फॉर्म च आपां इन्हां नूं पढ़ांगे। तो वीक इलैक्ट्रोलाइट्स लई एक होर चीज़ है अल्फा। अल्फा मीनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वीक इलैक्ट्रोलाइट्स की आप स्टडी करते हैं। हम देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट डिसोशिएटेड और आयोनाइजेशन, डिसोशिएटेड किन्नी क फ्रैक्शन दे विच जिहड़े पार्टिकल्स ने इलैक्ट्रोलाइट दे वो डिसोशिएट हो गए, उन्होंने आप बोलते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिमें मैं एक एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझाउणा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलिया सी कि 100 AB पार्टिकल्स ने, ये 80 AB पार्टिकल्स तो डिसोशिएट हो गए, बाकी जिहड़े पार्टिकल्स ने वो इदां दे इदां ही प्रेजेंट हैगे ने सोल्यूशन दे विच। नाउ 100 टोटल ने, किन्ने डिसोशिएट हो गए 80, तो अल्फा की हो गया जिन्ने डिसोशिएट हो गए अपॉन टोटल किन्ने लेते सी, तो ये होगी फ्रैक्शन, उन्होंने बोलते हैं आप अल्फा। किन्ने मॉलीक्यूल डिसोशिएट हो गए ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलीक्यूल किन्ने टेकन सीगे, ठीक है। जाइनू आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स दैट डिसोशिएटेड अपॉन total number of particles taken, total number of particles taken, total number of particles किन्ने taken सीगे, किन्ने लेते सी स्टार्टिंग दे विच, उन्हां चों किन्ने डिसोशिएट हो गए, इन्हां नूं डिवाइड कर दो, अल्फा आ जानी है। हुण अल्फा स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स दे लई किन्नी होएगी, स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा कितनी होगी
देखो आप स्ट्रॉन्ग बोलिया कि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, अगर 100 पार्टिकल्स लेते हैं तो 100 के 100 ही डिसोशिएट होंगे, तो इट मीनस ये की होगी 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होएगी, वीक के लिए अल्फा की वैल्यू लैस दैन 1 होएगी। क्लीयर? स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू 1, वीक के लिए लैस दैन 1। नाउ नैक्सट आ गया फैक्टर्स affecting the conductance of electrolytes। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ने ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। देखो अपने को दो तरह के इलैक्ट्रोलाइट्स ने आप हुणे कीता, एक स्ट्रॉन्ग एक हैगा वीक। जिहड़े इलैक्ट्रोलाइट्स ने या इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ने इन्हां दी कनैक्टिविटी आयंस करके हुंदी है मेनली। ठीक है, अगर अपने को स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाना, अगर वीक है तो पार्शली आयोनाइज हो जाना। मीनस इत्थे नंबर ऑफ आयंस की ने? मोर ने, ज़्यादा ने। इत्थे की ने? लैस ने, घट ने। ठीक है, इत्थे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा ने, इट मीनस इहदी कंडक्टेंस की होगी? ज़्यादा। कंडक्टेंस की होगी? कंडक्टेंस मोर होएगी। इहदी कंडक्टेंस की होएगी? लैस होएगी। कंडक्टेंस की होएगी? लैस। तो एक तो ये वाला फैक्टर हो गया कि एक अगर अपने को स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली आयोनाइज होकर ज़्यादा आयंस प्रोवाइड करता है, तो उस केस के विच कंडक्टेंस ज़्यादा होएगी। अगर इलैक्ट्रोलाइट वीक है तो कंडक्टेंस घट होएगी। क्लीयर? तो यही नेचर होगी इलैक्ट्रोलाइट की। मीनस इलैक्ट्रोलाइट आप जो लेता है एक्सपैरीमेंट प्रैक्टिकल करने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, अगर वीक है तो कंडक्टेंस घट है। नैक्सट हैगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी एंड इट्स विस्कोसिटी। पहले आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट कर लें कि सॉल्वेंट पोलर है या सॉल्वेंट नॉन पोलर है। अगर सॉल्वेंट पोलर होया तो ये इलैक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोशिएट होएगा, इट मीनस इतने नंबर ऑफ आयंस की होंगे? मोर होंगे। ठीक है, अगर अपना सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो ये इलैक्ट्रोलाइट घट डिसोशिएट होएगा, इट मीनस आयंस की होंगे? लैस होंगे। तो अगर पोलर सॉल्वेंट्स ने तो उत्थे आयंस ज़्यादा बनते हैं, कंडक्टिंग पावर भी ज़्यादा होएगी। अगर नॉन पोलर है तो कंडक्टिंग पावर घट होएगी। ठीक है, विस्कोसिटी देखो जिहड़े आयंस ने, एक तो देखो नंबर ऑफ आयंस जिन्ने ज़्यादा ने तो कंडक्टिंग पावर ज़्यादा हैगी है। ठीक है, दूसरा फैक्टर की है कि आयंस की जिहड़ी मूवमेंट है, मोबिलिटी है, जिन्ना तेज़ आयंस एक टर्मीनल तो दूसरे टर्मीनल वाल जाणगे ਜਾਂ सोल्यूशन तो टर्मीनल वाल जाणगे, इलैक्ट्रोड वाल जाणगे, उन्नी कनैक्टिंग पावर ज़्यादा होएगी। इट मीनस आयंस की मोबिलिटी भी मैटर करती है। हुण विस्कोसिटी है, सॉल्वेंट है जिहड़ा कितना क गाढ़ा है। ठीक है, जिन्ना गाढ़ा ज़्यादा होएगा उन्ने ही आयंस नूं मूव करन दे विच प्रॉब्लम आएगी तो उहदी कंडक्टिंग पावर भी घट होएगी। ठीक है, जिन्नी विस्कोसिटी ज़्यादा उन्नी इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर घट, तो कंडक्टेंस घट होएगी इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। अगर जिहड़े सॉल्वेंट दे विच उहनूं डिसोल्व करके सोल्यूशन बनाया उहदी विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो विस्कोसिटी का इदां इफैक्ट पैंदा, आयंस की मोबिलिटी के उपर इफैक्ट पाउंदी है। नैक्सट हैगा सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन, जिहड़ा आयन है, मान लो पॉजिटिव चार्ज आयन है, सॉल्वेंट अपने को वाटर है, वाटर की है? पोलर है, नैगेटिव पॉजिटिव पोल ने उपर। तो जदों ये आयन वाटर दे विच आ जाता है, ठीक है, जो कोई अपने को इलैक्ट्रोलाइट लेता है वाटर दे विच ऐड किया, डिसोशिएट हो गया, आयन आ गया अपने को, तो वाटर के मॉलीक्यूल ये आसे पासे इस तरह जुड़ के एक सफेरिकल क्लस्टर बना लेंगे हैं, जिहदे करके ये आयन का साइज़ वध जाता। साइज़ वधन का करके जिहड़ी मोबिलिटी है, मूव करन दी शक्ति है, टेंडेंसी है, वो घट जाती है। अगर ये मूवमेंट घट गई इट मीनस कंडक्टिंग पावर भी ये घट गई। क्लीयर? अच्छा, हुण जिन्नी सॉल्वेशन ज़्यादा होएगी
उन्नी इहदी कनैक्टिंग पावर घट होएगी। जिहड़ी सॉल्वेशन पावर है वो डिपेंड करती है जिहड़ा आयन है उहदे साइज़ ते, दूसरा इहदे उपर चार्ज कितना, जिन्ना चार्ज ज़्यादा तो जिन्ना घट साइज़ होएगा उन्नी सॉल्वेशन इहदी ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, तो ये सॉल्वेशन हो गया, जिन्नी आयन्स की सॉल्वेशन ज़्यादा होंदी है उन्नी उहदी कनैक्टिंग पावर घट होंदी है। ठीक है जी, अगला हैगा कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। चौथा पॉइंट है कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट्स। देखो जिन्ना आपां सल्यूट वध ऐड करांगे उन्ने आयन्स बधणगे, इट मीनस कंसनट्रेशन वधूगी, इट मीनस कनैक्टिंग पावर भी वधूगी। बट ये चीज़ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही काम करती है, उस तो ज़्यादा काम नहीं करती हैगी। देखो कोई सॉल्वेंट है अपने को, आप सल्यूट ऐड करन लगे, इट मीनस नंबर ऑफ आयन्स बधन लगे। ठीक है, आप सल्यूट होर ऐड करता, ठीक है, वो क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिदे करके आयन्स एक दूसरे के विच ही कोलाइड करी जाणगे, उन्होंने मूवमेंट करने के प्रॉब्लम आएगी, इट मीनस उन्होंने कनैक्टिंग पावर घटेगी। अपने दिमाग के विच आउंदा कि जिन्नी कंसनट्रेशन आप वधाई जावांगे आप कंडक्टेंस नूं वधाई जावांगे। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ये चीज़ काम करती है, क्योंकि जे हद तो ज़्यादा आप ਜਿਹੜੇ आयन्स ने उन्होंने गिनती ਵਧਾ दईए तो वो एक दूसरे ਨੂੰ अपोज करी जाएंगे, उन्होंने मूवमेंट ਨੂੰ अपोज करी जाएंगे, जिसके करके कंडक्टेंस ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ घटनी शुरू हो जानी है। तो कंसनट्रेशन अफेक्ट करती है इदा। ठीक है, अगे आ गया लास्ट टैंपरेचर, लास्ट 5th टैंपरेचर। टैंपरेचर कितना अफेक्ट करता, देखो अपने को जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है ये दो तरह का है, एक स्ट्रोंग है एक की है वीक है। जिहड़ा स्ट्रोंग है ये तो कंप्लीटली आयोनाइज होया है, ये तो कंप्लीटली आयन्स बने हुए हैं। ठीक, अपने को सोल्यूशन है स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट का, ये कंप्लीटली आयन्स ये बने हुए हैं। तो अगर आप इहदा टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे तो यदा इफैक्ट की होगा, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਵੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ठीक है, अगर टैंपरेचर वधावांगे तो वह आयोनाइज होगा वध, नाल दी नाल उहदी मोबिलिटी भी वधूगी। ठीक है, मोबिलिटी भी वधूगी तो डिसोसीएशन भी वधूगी। तो अगर टैंपरेचर वधाउने आ, कोई भी किसी भी तरह का इलैक्ट्रोलाइट है उसकी कनैक्टिंग पावर तो वधेगी। ठीक है, बट यह फैक्ट वीक इलैक्ट्रोलाइट से ज़्यादा अप्लाई होएगा। मतलब टैंपरेचर ਵਧਣ ਦਾ करके वीक इलैक्ट्रोलाइट की जी कनैक्टिंग पावर है वो स्ट्रोंग नालों ज़्यादा ਵਧੇਗੀ, इनक्रीमेंट ज़्यादा होएगा। ये अगर ये 25% इनक्रीमेंट होता टैंपरेचर ਵਧਣ ਦਾ करके, ये हो सकता 50% हो जाए। ठीक है, ज़्यादा इनक्रीमेंट ये होएगा, क्यों? क्योंकि टैंपरेचर ਵਧਣ ਦਾ करके एक तो यदी मोबिलिटी बढ़ रही है जी कि ये भी बढ़ रही है, दूसरा की हो रहा है डिसोसीएशन बढ़ रही है। डिसोसीएशन बढ़ूगी तो नंबर ऑफ आयन्स की गिनती बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़नगे। सो दो फैक्टर ये इनक्रीज़ कर रहे हैं, तां करके यदी कनैक्टिंग पावर ज़्यादा होएगी, ज़्यादा इनक्रीज़ करेगी, सॉरी यदी कनैक्टिंग पावर घट इनक्रीज़ करेगी। क्लीयर, तो टैंपरेचर ਵਧਣ ਦਾ करके इलैक्ट्रोलाइट्स की कनैक्टिंग पावर जी हैगी वो वधदी है, बट वीक इलैक्ट्रोलाइट्स की ज़्यादा वधदी है, स्ट्रोंग की घट वधदी है। ठीक है जी, नैक्सट इज ओम्स लॉ। सपोज कर लो अपने को एक कंडक्टर है, कोई भी एक वायर सपोज कर लो कि वायर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट आई फ्लो कर रहा है, ਇਹਦੇ दोनों ਜਿਹੜੇ एंड ने सपोज कर लो ए बी एंड ने, दोनों का ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस है वो हैगा V, कैपिटल V। दैन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स का ज़्यादा होएगा उन्ना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सिंपल। नाउ V इज़ इक्वल टू आर आई, वेयर R इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनू बोलते हैं आप रजिस्टेंस। रजिस्टेंस आर इज़ रजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो V की आ गया आई आर दे इक्वल। ठीक है जी, तो ये आ गया ओम्स लॉ। अगर आप V ते आई का ग्राफ प्लॉट करिए, सॉरी V ते, हाँ ठीक है, V ते आई का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओरिजिन के विच दी पास करेगा। ठीक है जी,
तो ये आ गया ओम्स लॉ। हुण अगे आपां गल करते हैं रजिस्टेंस की हुंदी है, क्योंकि आप इत्थे लैके चले हाँ कि आर रजिस्टेंस नूं आपां आर दे नाल डिनोट करते हैं। रजिस्टेंस हुंदी की है, देखो करंट है, सपोज कर लो 100% करंट है अपने कोल, ठीक है, उहदे विचों 80% करंट अगे जा रहा है, लंघ रहा है, 20% नहीं लंघ रहा, 20% उहदे विच रुकावट आ रही है। जिहड़ी ये रुकावट आ रही है इहनूं बोलदे आपां रजिस्टेंस। करंट नूं फ्लो करन दे लई, करंट नूं फ्लो करन दे विच किन्नी क ऑबस्ट्रक्शन आ रही है उहनूं आपां बोलदे हां रजिस्टेंस, रुकावट, ठीक है। तो यह हरेक वायर की अपनी कोई ना कोई रजिस्टेंस हुंदी है। यही रजिस्टेंस का करके जिहड़ियां वायरस ने, कोई भी इलैक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उत्थे करंट का लॉस हो जाता रहता है। जिन्नी रजिस्टेंस ज़्यादा उन्ना करंट का लॉस ज़्यादा होएगा, उन्ना हीटिंग इफैक्ट ज़्यादा होएगा, ठीक है जी। तो रजिस्टेंस होगी, जिहड़ी रजिस्टेंस है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की, जिन्नी लेंथ ज़्यादा उन्नी रजिस्टेंस ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिए दे, जिन्ना एरिया ज़्यादा उन्नी रजिस्टेंस घट, ठीक है। अगर आप रजिस्टेंस घट लैके आनी है तो एरिया वधा दो, अगर रजिस्टेंस वध लैके आनी है तो रजिस्टेंस सॉरी लेंथ जी हैगी वो इनक्रीज़ कर दो। अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करते तो अपने को आंदा R/L/A, ठीक है। इत्थे भी कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप लगावांगे तो वो आ जाएगी रो इज़ कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इनू आप बोलते हैं स्पैसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, स्पैसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी नूं आपां बोलते हैं रो, ठीक है। तो यह आ गई अपनी आर डिपेंड करती है L एंड A दे उपर, ठीक है जी। जिन्नी लेंथ ज़्यादा उन्नी रजिस्टेंस ज़्यादा, जिन्ना एरिया ज़्यादा उन्नी रजिस्टेंस घट। अगे आप गल करते हैं स्पैसिफिक रजिस्टेंस की होंगी है। स्पैसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी रो एक ही होंगी है। आपने पढ़िया होनी R इज़ इक्वल टू ρL/A, ठीक है। अगर आप L 1 सेंटीमीटर ले लीए, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ले लीए, दैन अपने को R की आ जाएगी रो दे इक्वल आ जाएगी। तो आप कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं। रो की होंगी है, रजिस्टिविटी की होंगी है, रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होंगी है जिहदी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो जिहदा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, ठीक है। तो रजिस्टिविटी की होगी अपने को रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज़ रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किहड़े कंडक्टर की, जिहड़े कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है जी। जिहड़ी रजिस्टेंस है उन्होंने आप ओहम दे विच नोट करते हैं, ओहम इहदी यूनिट आ, ए दा साइन है ओहम दा, ठीक है जी। जिहड़ी रजिस्टिविटी आ गई, देखो रजिस्टिविटी की आ गई अपने को R इंटू A/L, ठीक है। यदी आ गई ओहम यूनिट, यदी आ गई सेंटीमीटर स्क्वेयर, यदा सेंटीमीटर आ गया कला, ठीक है। तो यदी यूनिट की आ गई ओहम सेंटीमीटर, तो रो की यूनिट आ गई ओहम सेंटीमीटर, रजिस्टेंस की आ गई कला ओहम, ठीक है जी। तो ये नाल यूनिट्स आ गई। अगे आ गया अपने को कंडक्टेंस। जिवें मैं पहला कहा सी कि 100% करंट है, वो 80% पास कर रहे, 20% रुकावट आ रही है। जोड़ा 80% पास कर रहे हो कि कंडक्टेंस है, मीनस किसी भी कंडक्टर की कंडक्ट करने की पावर कितनी है ਜਾਂ किन्ने क सौखे ढंग नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट पास कर रहे हैं उन्होंने ਆਪਾਂ मेयर करना, तो वो होंगी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ जी ਨਾਲ लिखते हैं, जी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ R ਦੀ। इट मीनस R ਦੀ यूनिट की है ओहम, जी ਦੀ यूनिट की हो जाएगी फिर ओहम इनवर्स, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋ लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਨ लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है जी। तो ਇਹਦੀਆਂ यूनिट्स आ गई, ठीक। आगे आ गया स्पैसिफिक कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी। स्पैसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कापा दे नाल लिख दिंदे आ, टेढ़ी के जी हुंदी है थोड़ी जी कापा, तो जिहड़ी कप है वो हैगी है रेसिप्रोकल ऑफ स्पैसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी,
ठीक है। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਹਮ ਇਨਵਰਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਸਾਈਮਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਹਮ ਹੈ ਓਹਮ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋ, ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੱਡੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।